So this is lecture 9, and this lecture we are going to discuss about your relay and receive channel. Okay, जो channels हैं जो available हैं हमारे, उनकी बात करेंगे. So अगर हम बात करें रिले और रिसियन का, आपने मोस्ट प्रॉब्ली फंक्शन पढ़ा होगा when ओके वहां पे हम इनकी बात करते हैं. सो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं हमारे बहुत तरह के, और इनको ही हम क्या अपने चैनल मॉडलिंग जब करते हैं तो इनको हम यूज करते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी हियर अकॉर्डिंग टू द ओके इन मोबाइल रेडियो चैनल the relay distribution is common to describe the statistical time varying nature of the received envelope of a flat of individual multipath components. So first point ये क्या करता है, जो आपका टाइम शो करता है, ठीक है, या उसके आपको प्रॉपर्टी को शो करता है, कैरेक्टरिस्टिक वहां पे. It is well known that the envelope of the sum of two quadrature Gaussian noise signal always a ये बोल रहा है कि जो हमारा टू क्वाड्रेचर अगर हमारे गॉसियन मॉडल है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो हमारे ओके कैसे होता है रिले डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने इस फिगर में बताया हुआ है कि दिस इज द योर रिले फेड पर्टिकुलर स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ ऐसे मिलता है. And this relay distribution is defined by this probability function. I think when you were learning about the digital communication, so this जो आपका power okay equal to r upon sigma square exponential minus r upon r square. Your r is lying between two, radius जो है वो lying between two 0 to infinity. If जो receive power is equal to 0, where sigma is your RMS value of the received voltage before the envelope detection. Sigma square is the time average power of the received signal before envelope detection. That the envelope of the received signal does not exceed specified value, capital R is given by the corresponding cumulative CDF. Okay, so अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, so you can see over here is the CDF is calculated by this PR, and this R is less than equal to capital R. PRDR जो हमारा सिग्नल आया, जो उसका प्रोबेबिलिटी जो रिसीव पावर सिग्नल आया उसको हम करते हैं, एंड इट विल कम अराउंड 1 स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर. फिर फर्दर उन्होंने मीन कैलकुलेट किया, इसमें हमें नहीं जाना है, ठीक है. इफ यू वांट टू कैलकुलेट यू कैन, it will come 1.2533 sigma. Okay, so directly you can remember R mean of a relay distribution is given by the 1.2 sigma. Okay, maybe they will ask question. Okay, so remember this, जो relay distribution होता है उसके लिए जो R mean की वैल्यू होती है, it comes 1.533 sigma. Okay, now median is comes 1.7 sigma. So जो इन्वेलप होता है, ओके फाइनली इफ यू रिमेंबर, ये आपने एक पीडीएफ फंक्शन पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, हमारा जनरलाइज पीडीएफ फंक्शन होता है रिले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. सो दैट इज द S0 सिग्मा टू सिग्मा, ये हमारा रिसीव पावर जो है अंडरस्टैंड, and you will get the maximum value at this point 0.6065 upon sigma. Okay, so this is the probability density function of your relay distribution. Okay,
नाउ रेसियन डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें अगर फंक्शन इज डिफाइंड बाय पी आर इक्वल टू आर अपॉन सिग्मा स्क्वायर ई टू द power minus r square upon 2 sigma square I naught ar upon sigma square where a is greater than equal to 0 and greater than equal to 0. ओके सो जो a है यहाँ पे ये आपकी क्या है p की एम्पलीट्यूड है जो भी सिग्नल है डोमिनेटिंग सिग्नल जो आई नॉट करके फंक्शन है दैट इज दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय द बेसल फंक्शन जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट काइंड जीरो ऑर्डर के लिए बेसल ओके एंड अगर हम मान के चलते हैं कि इस फंक्शन को ए आर ए स्क्वायर अगर यहाँ पे गिवन है यू कैन सी द रेसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफन डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर k व्हिच इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द deterministic signal power and the variation of the multipath. So that is the k is defined by the this a square upon 2 square. ठीक है सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम कंसीडर करते हैं जो हमारा पी आर होता है दैट इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ दिस so a square upon 2 square when you consider the in terms of dB so easily you know how to convert this signal dB so that is comes in this form okay for different values so these are the two हमारे जो दो है मॉडल्स चैनल है रिले एंड रेसियन जो हम यूज करते टाइम ओके सो ये फंक्शन क्या होते हैं इनके जो पीडीएफ क्या होता है वो फंक्शन हमने यहाँ पे देखा क्या इनका जो रिस्पॉन्स टर्म्स ऑफ योर सिग्मा एंड पी आर वैल्यू वो भी हमने देखा यहाँ पे डिफरेंट के लिए हमने देखा सो इफ के गोइंग टू माइनस इनफिनिटी ये टुवर्ड्स टू हमारा क्या हो रहा है शिफ्ट होता जा रहा है और के हम इंक्रीज करते जाएंगे तो ये कुछ ऐसा शिफ्ट होता जाएगा तो के की वैल्यू के लिए हम करेंगे तो इन दिस मैनर ओके सो यहाँ पे इन्होंने बताया कि फॉर के इक्वल टू 6 अगर हम कंसीडर करते हैं तो जो रहता है उसका जो पीडीएफ होता है वो अप्रोक्सीमेटली गॉसियन के बराबर होता है अबाउट द सो इफ यू आर कंसीडरिंग के इक्वल to say about Gaussian. So from here you can also find out the relation between कि Gaussian and Hessian में क्या relationship है. Now ये तो हमारे हो गए चैनल इसी में था हमारा जो हमारे आउटडोर प्रोपगेशन मॉडल थे वो थे इफ यू रिमेम्बर ओकुमुरा एंड हाटा मॉडल दो तरह से हमने पर देखे थे ओकुमुरा मॉडल था हमारा एक हाटा जो हमने लेक्चर नंबर 7B में ऑलरेडी पढ़ लिया ओके मैंने पहले इसलिए पढ़ा दिया कि वो टू लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू सिलेबस ओके वो हमारा लेक्चर नंबर इसमें यू कैन रिफर दिस लेक्चर नंबर 7B ओके वहां पे आपको ओकुमुरा एंड हाटा मॉडल अवेलेबल है वहां ठीक है सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू कि रिले एंड रेसियन क्या होते हैं कैसे इनके हमारे पीडीएफ फंक्शन होता है इनका ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिले एंड रेसियन ओकुमुरा एंड हाटा मॉडल वी ऑलरेडी